Hello, guys. Welcome to Nyayaveda Law Academy. I'm Rajnish Jindal, and I will be discussing with all of you in this lecture series with respect to minor acts regarding the judicial services preparation. I have seen personally that the aspirants face one of the main difficulty in dealing with the minor acts. They generally prepare all major one, but they ignore the importance of minor ones as well. And let me make it very clear to all of you that minor subjects have their own importance in judicial services preparation. Even a single mark, a single number matters for all of you. So if you prepare these minor subjects as well, this will give you an edge over the other aspirants. And one of the biggest difficulty the IS and the judiciary aspirants face is the preparation about Negotiable Instruments Act. Because Negotiable Instruments Act covers a lot of financial jargons, and many of the aspirants face difficulty in understanding this Negotiable Instruments Act. But in this lecture series of Nyayaveda Law Academy, I will be making it very easy for all of you to understand Negotiable Instruments Act. Okay. So before I begin, I just want to make it very clear to all of you that this subject has a lot of importance for all of you, the future judges, or even as a lawyer as well. You find a lot of importance of this NIA. Why? Because many of the newcomers, the lawyers basically start their career in dealing with the check bounce cases. Similarly, when you enter at a civil judge level, you come across the cases with respect to check bounce. Okay, so it becomes pertinent for all of you to understand what exactly this subject is all about and how to deal with this. And it is not about only this NIA, it is about every subject, because every subject has a unique pattern of understanding. Every subject has unique pattern of reading. So whenever you start reading any particular subject, it is important for all of you to understand first the basics, then move on to the intermediate level by relating the various other dimensions of the particular subject, and then the landmark cases as well. So every subject has a unique method of preparation, like the basic level or the beginner level, then intermediate level, and then the advanced level. But if you try to go to the advanced level directly, obviously परेशानी होगी. So how to tackle and how to deal with this particular thing right now, I'm going to discuss with all of you. And one thing I request all of you, please have your latest Barrett with you, because NIA has gone, through latest amendments in the recent past. So we have come across number of new sections. We have come across new latest landmark judgments as well, and the method of going through this particular subject. So first of all, let me make it clear to all of you what kind of questions you see in the examinations. Number one, and then how to tackle this particular subject. So regarding the prelim examination, generally they ask questions about even they ask questions about the basic definitions, or about the basic words, or the basic kind of, you can say, the definitions in which section you find those sections in those definitions. And secondly, the most important one is the landmark cases, the latest judgments, and the method of moving the criminal complaint under section 138. So this is the most important thing which you should understand in this particular lecture. Okay. So in this part 1 of NIA, I will be discussing with you the basic idea about this NIA entire act, and then I will be discussing more specifically chapter 17, because in Rajasthan and in MP now they are more concerned with chapter 17 only, because the earlier part, or you can say from chapter 1 till chapter 16, it has become somehow irrelevant, because now the persons are not moving through the civil cases, they are simply moving in criminal cases. And another issue is, now persons are not dealing with the other kind of negotiable instruments, they are dealing only with the checks. और हालांकि गवर्नमेंट का तो अभी एक प्लान चल रहा है दूसरा, कि नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ दिस एनआईए सेक्शन 138. The government is working like this criminalization of check bounce cases should be now gone away with, and it should be made only a civil offense or civil case. Okay. So
let us see what happens in future, but right now what exactly this subject is all about, we will discuss this in this lecture, the various financial jargons about NIA, and after that I will be discussing with you chapter 17 basics. So this will be covered in part 1 today. In the next video, you will be seeing part 2, in which I will be discussing with you the landmark and the latest cases of NIA, through which it will become more easier. And in the last part of this NIA, I will be discussing with you how to deal with the questions of prelim exam and the mains exam. Okay. So now guys, let us start with this NIA, and before I begin, I just want to make all of you understand the arrangement of this particular NIA. So the main focus of yours should be not upon number of things. You should be focusing on relevant things only. Okay. So one of the thing you should be very well aware of the meaning of this, the promissory notes, bill of exchange, check. However, these are not relevant as of now. Promissory note or bill of exchange, they are not being used in current scenario. तो ज़्यादा यूज होता नहीं है बच्चों इनका. तो आज की डेट में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस आर बिंग डन थ्रू द चेक्स ओनली. और चेक के थ्रू क्यों किया जाता है? क्योंकि चैप्टर 17 के आने के बाद, because this particular chapter 17 makes this particular dishonor of check as a criminal offense. So that is the reason now the persons are not going through the civil cases, they are moving through the criminal complaints. Okay. And that is the reason chapter 17 has become more relevant nowadays. And as a civil judge at entry level, you mainly come across these kind of cases. Okay. Then the meaning of drawer, drawee in case of need, acceptor for honor or pay. These are the financial words or financial jargons actually which we use in the commercial world. And another thing which is more relevant, that is section 8 and section 9, which is about holder and holder in due course. Rest are not relevant for all of you, but I will make you understand why this is called negotiable, then instruments, and after that why only check is relevant, and after that you know how to deal with this chapter 17. So this is the sequence I'm going to discuss with you. But before I begin, थोड़ा समझ के चलते हैं कि आखिर ये NIA है क्या. ठीक है, तो चलेगा, शुरू करते हैं. सपोज करिए मैं आपके पास आता हूँ, आप एक कंप्यूटर सेलर हैं, आप कंप्यूटर सेल करते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि आई नीड दिस कंप्यूटर, और मैं कहता हूँ कि आपसे कि वो मेरे पास अभी पैसा नहीं है देने के लिए, बट आई विल गिव यू अ चेक. ठीक है, आप ये चेक ले लीजिए मेरे से और मुझे कंप्यूटर दे दीजिए. आपने कहा इट्स ओके, मैं चेक ले लेता हूँ और आप कंप्यूटर ले लीजिए. तो आप अपने बैंक में जाएंगे, उस चेक को लगाएंगे, और चेक की पेमेंट, अगर मेरे बैंक में पैसा है तो वो पेमेंट हो जाएगी. अगर चेक पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली चेक विल बी डिसऑनर्ड. ठीक है. तो ये जो चेक आपके पास आया, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है क्या? बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? व्हाई दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स? आखिर इनका पर्पस क्या है? तो देखिए, जब भी आप कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं, वेन एवर यू बाय और सेल एनीथिंग, तो जब भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपके पास कुछ खरीदने आता हूँ या आप कुछ सेल करते हैं, तो तरीका क्या है डील करने का? कि मैं आपको कैश पेमेंट कर दूं और आप मुझे सामान डिलीवर कर दें. तो यानी कि आई पे यू, आई मेक अ पेमेंट टू यू एंड यू डिलीवर द गुड्स टू मी. दैट इज द ओनली बेसिक थिंग इन अ कमर्शियल वर्ल्ड. नाउ द इशू इज, अगर मेरे पास कैश नहीं है, इफ आई डू नॉट हैव कैश विद मी, देन आप डील कैसे करेंगे? तब उस केस में यू ऑब्वियसली गो विद दिस क्रेडिट. तो आप बात करेंगे कि भाई चलिए काम करिए, आपके पास कैश नहीं है, हम आपको उधार दे देते हैं. अब उधार आप देंगे, तो अब उधार देने के बाद आपके पास क्या एविडेंस होगा कि कल को अगर मैं आपकी पेमेंट ना करूं तो आप किस बेसिस पर उसको जाकर के स्यू करेंगे, कैसे क्लेम करेंगे मेरे से? तो बहुत पहले, मतलब इनिशियल लेवल पर लोग नॉर्मली क्या करते थे, एक सिंपल पीस ऑफ पेपर पे लिख कर दे दिया करते थे कि भाई देखिए, मैंने आपसे ये सामान खरीदा, और यानी कि आई प्रॉमिस टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट टू दिस पर्सन. तो मैं यहाँ लिख के दे दूंगा, आई प्रॉमिस टू पे this much of amount of rupees to Mr. X on this particular date, and I sign over here. So this is the simple kind of, you can say, the kind of instrument which I am giving to you, क्योंकि मैं आपसे उधार सामान खरीद रहा हूँ और मैं आपको अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि आपसे मैं ये पेमेंट आपको 1 मंथ के बाद पे कर दूंगा. आफ्टर 1 मंथ आई विल पे टू यू.
तो क्वेश्चन अब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट बना, इस डॉक्यूमेंट को लीगल सैंक्टिटी कैसे देंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की लीगल वैलिडिटी नहीं है। यू नो वेरी वेल, इन एविडेंस देर इज वन थिंग कॉल्ड रेलिवेंट, अनदर थिंग इज कॉल्ड एडमिसिबल। तो डॉक्यूमेंट तो रेलिवेंट है, लेकिन एडमिसिबल है कि नहीं है, तो इसको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट से एडमिसिबल बनने के लिए एक लीगल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो या तो मैं क्या करूं, इसको जाकर के नोटराइज करवाऊं, जाकर के स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह पे करूं, या जाकर के मैं इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाऊं। तो जो भी मेथड है आपका, तो जो सिंस यू कैन से लाइक द ब्रिटिशर्स ने जब ये सिस्टम इंप्लीमेंट करा, तो जो भी आपका सिस्टम था, तो नॉर्मली क्या है कि प्रोमिसरी नोट में अगर मान लीजिए मैंने आपको पेमेंट करनी है, तो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच ऑफ अमाउंट ऑन दिस डेट। तो मैंने आपसे कहा, तो मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि भैया आई विल पे यू, ठीक है, आई विल पे यू दिस मच ऑफ अमाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। तो जो डॉक्यूमेंट बनाता है उसका होता है नाम ड्रॉर। तो यानी कि आई एम द ड्रॉर ओवर हेयर, और जिसको मैं पेमेंट करूंगा दैट पर्सन विल बिकम पे। बात समझ आई? तो जो भी डॉक्यूमेंट बनाएगा दैट पर्सन इज ड्रॉर, ठीक है। जिसको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जिसको पेमेंट दी जाएगी, तो जिसको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा ड्रॉ ही हो गया, और जिसको पेमेंट होगी वो पे ही हो गया। ठीक है, सिंपल। तो इन वर्ड्स को लेकर के कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वर्ड सिर्फ समझ, बेसिक इनका समझ के चलिए, आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सब समझाने का पर्पज है कि कई बार एग्जाम में इन सब चीजों के रिगार्डिंग कभी कभार एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आ जाता है और फिर आपको पता नहीं होता है, देन यू पैनिक, और इसको समझने में 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि भैया ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको पे करने का, तो आपने कहा इट्स ओके डन। तो हम इसको बेसिकली जा करके जो भी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, जो इसका एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे होगी, उसको पे करके हम इसको प्रॉपरली लीगलाइज करवा लेंगे। और अगर कल को मैं आपको पेमेंट नहीं करता, आप जाकर के कोर्ट में स्यू करेंगे कि मैं इससे पेमेंट मांगने गया था, ये इसका प्रोमिसरी नोट है जो इसने मुझे दिया था, ये पे नहीं कर रहा है, प्लीज मेरे को मेरा पैसा दिलवाइए। तो इट विल बी ए सिविल केस। चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक आप जो भी पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज प्योरली अ सिविल मैटर। चैप्टर 17 इज अ क्रिमिनल कंप्लेंट। तो इसके जो ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में ये फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती थी कि आपको जाकर के इनके रिगार्डिंग स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह पे करके आपको ये सब पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन करवाना पड़ता था। तो वो सारी डिफिकल्टीज की वजह से ये प्रोसेस बहुत टेक्निकल हो चुका था। इसकी वजह से चेक सिस्टम, जब बैंक्स प्रॉपरली सेटअप हुए आपकी कंट्री में, तो बैंक ने एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट अपने लेवल पर इशू करना शुरू कर दिया जिसका नाम था चेक। तो चेक पर बाद में आएंगे, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में और समझ लेते हैं। तो यहां पर जिसको पैसा देना है, यानी कि मैं, जिसने उधार सामान खरीदा, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं आपको पे कर दूंगा, तो डॉक्यूमेंट बनाने वाला मैं हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज में उल्टा है, मैंने आपको पैसा पे करना है, तो आप कहते हैं कि तू डॉक्यूमेंट मत लिख, डॉक्यूमेंट मैं अपनी कंडीशन के बेसिस पे लिखूंगा, तो डॉक्यूमेंट भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस केस में ड्रॉर कौन हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज में आप। तो जिसको पेमेंट लेनी है दैट पर्सन इज अ ड्रॉर, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट बनाएगा दैट पर्सन इज अ ड्रॉर। अब आपने कहा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने बना दिया, तो इस पर साइन कर, तो आई विल साइन इट कि हाँ जो आपने लिखा मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट कर दूंगा। तो नाउ उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब यहां पर ये है कि जो डॉक्यूमेंट बनाएगा दैट पर्सन विल बी ड्रॉर, जिसको पेमेंट होगी दैट पर्सन इज पे, और जिसके पास इंस्ट्रूमेंट जाएगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो दैट पर्सन विल बी ड्रॉइंग। तो क्वेश्चन अब ये है कि यहां पर हमारे इस केस में जो ड्रॉर है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट बनाएगा ड्रॉर, जिसको पेमेंट होगी पे, जो पेमेंट करेगा पेयर। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं आपको इस डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया, मैं उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके मैं कहूंगा इट्स ओके सर, ठीक है, मैं सारी बातें एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम द एक्सेप्टर, कि आप ये जो है डॉक्यूमेंट आप, ठीक है, आपने जो लिखा आई एग्री विद द कंडीशंस एंड मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, दैट्स ऑल। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स थे बेसिकली जो कि आप और मैं मिलकर के प्रिपेयर करते थे। फिर उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस वगैरह थे वो पे करके हम उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते थे। अब ये सारा सिस्टम बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करवाने में, और इसको फिर फाइनली जब पेमेंट का टाइम आएगा तब उसको जाकर के नोटिंग और प्रोटेस्ट करवाना पड़ता था। तो उसकी नोटिंग करवानी पड़ती थी, फिर उसका प्रोटेस्ट करवाना पड़ता था एविडेंस क्रिएट करने के लिए कि ये पेमेंट नहीं हुई है। तो दिस वाज अ हाईली टेक्निकल प्रोसेस। लेकिन जब बैंक्स आपकी कंट्री में प्रॉपरली स्टैब्लिश हुए और उसके बाद बैंक्स ने जब चेक्स वगैरह इस चेक बुक देनी शुरू करी, तो चेक की वजह से सारा मैटर सिंप्लीफाई हो गया। इसी वजह से आज की डेट में लोग प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज पर थोड़ा कम जाते हैं, क्योंकि उसको एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट से एडमिसिबल डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस बहुत टेक्निकल है। इसीलिए आज की डेट में हम चेक्स पर रिलाई करते हैं, क्योंकि चेक से केस में आपको कुछ नहीं करना,
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपसे मैंने कंप्यूटर परचेज करा उधार, मैं आपको एक चेक इशू कर दूंगा। मेरे पास सपोज करिए मेरे पास एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, तो मैं आपको अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट का एक चेक इशू कर दूंगा, आपको ये चेक दे दूंगा। आपका सपोज करिए आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, आप जाएंगे अपने अकाउंट में इस चेक को लगा देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। आपका बैंक मेरे बैंक से कांटेक्ट करेगा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो वो पैसा यहां से चला जाएगा आपके पास। दैट्स ऑल, दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ चेक। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जब सारा प्रोसेस था तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या था कि चेक का प्रोसेस बहुत इजी है। तो चेक में सपोज करिए अगर मैं आपको पेमेंट, मेरा बैंक में पैसा नहीं है और आपकी पेमेंट नहीं हो पाती तो ऑब्वियसली चेक बाउंस हो जाएगा। बैंक एक डॉक्यूमेंट इशू कर देगा कि एक बेसिकली एक डिसओनर ऑफ चेक को लेकर के एक डॉक्यूमेंट इशू हो जाता है कि ये एक बैंक की तरफ से एविडेंस है कि आप, मेरे बैंक में पैसा नहीं था, अकाउंट में पैसा नहीं था और चेक बाउंस हो गया है। नाउ इट इज एन एविडेंस फॉर यू। अब ये एविडेंस कोर्ट में सिंपली एडमिसिबल है, रेलिवेंट भी है, एडमिसिबल भी है, इसमें कोई टेक्निकल प्रोसेस अब नहीं है। तो यहां पर इस वजह से लोग प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को खत्म करके चेक पर मूव कर गए। पहली बात तो ये समझिए। और क्योंकि फिर चैप्टर 17 जब आया, तो चैप्टर 17 के आने के बाद अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा इशू क्या था कि चेक के आने के बाद प्रोसेस इजी हुआ तो लोगों ने चेक पर ध्यान दिया। और चैप्टर 17 के आने के बाद खासकर क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल कंप्लेंट बन चुकी थी ये, और आपको पता है कि सिविल केसेस के अंदर बहुत लंबा टाइम लगता है और लोग फिर डरते भी नहीं है, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट को लेके भी बड़ी लिमिटेड काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट है और बहुत बहुत मतलब हाईली टेक्निकल प्रोसेस है। तो यहां से लोगों ने अवॉइड करना शुरू करके क्रिमिनल कंप्लेंट्स में जाना शुरू कर दिया। तो पहली बात तो ये समझो कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को स्किप कर दिया गया, चेक पर आ गए। और जब चैप्टर 17 ऐड हुआ तो चैप्टर 17 के ऐड होने के बाद अल्टीमेटली अगर आप देखें, जब भी क्रिमिनल केस बना तो क्रिमिनल केस बनने के बाद चीजें इजी हो गई। हालांकि आज भी क्रिमिनल मैटर के अंदर टाइम प्रोसेस काफी लंबा है, लेकिन सिविल केसेस के कंपैरेटिवली कम है। और यहाँ पर जो चेक इशू करता है, जिसको पेमेंट करनी है, जो आपका डेटर है, वो लाइबल है एक्चुअली। उसको लगता है क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, कल को समन्स इशू होते हैं, कोर्ट बुलाती है, नहीं आता, वारंट इशू होते हैं, अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये थोड़ा सा यू नो एक रिजिड काइंड ऑफ सिस्टम है जहां पर फिर एक्यूज जो है, जो आपका जो चेक जिसने पेमेंट करनी थी उस बंदे के फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पर वो डर के मारे पेमेंट या सेटलमेंट कहीं ना कहीं पे कर लेता है। सिविल केस में ऐसा नहीं था, तो इसीलिए सिविल वाला जो पार्ट है वो आज की डेट में इरेलीवेंट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि लोग सिविल सूट में जाते नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में आपकी जो चेक मतलब क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, वो बहुत लिमिटेड है। अगर आपने विद इन टाइम फ्रेम अगर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल नहीं की तो आप चैप्टर 17 यानी कि 138 में जा नहीं पाएंगे। तो आपके पास सिविल सूट का ही ऑप्शन बचेगा। तो अगर आपसे गलती से भी अगर अगर आपकी गलती से भी आपसे क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना छूट गया बॉस, तो आपको फिर सिविल सूट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, खैर। तो यानी कि ये समझ के चलिए कि आखिर क्रिमिनल चैप्टर 17 क्रिमिनल कंप्लेंट वाला पार्ट इतना रेलिवेंट क्यों है, पहले ये समझिए। तो अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट्स को लाने के पीछे का पर्पस था कि भाई एविडेंस बनाना, ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो पार्टीज के बीच में तो जेन्युइन पार्टी जिसने बोनाफाइड तरीके से काम किया था वो अपने मैटर को लेके कोर्ट में परस्यू कर सके। ठीक है, दैट वाज द मेन पॉइंट। उसके बाद का इशू आता है कि भाई देखिए, चलिए ये तो हो गया। ये नेगोशिएबल का मतलब क्या है? जब मैं आपको करेंसी देता हूं, मैंने आपको सपोज करिए 2000 का नोट दिया, हालांकि अब 2000 का नोट है वो थोड़े दिनों बाद बंद हो जाएगा आपका, लेकिन अगर मैंने आपको 2000 का नोट दिया तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन चलो 2000 को छोड़ो, 500 का नोट की बात करते हैं। मैंने आपको 500 का नोट दिया, आपने किसी और को दिया, किसी और ने किसी और को दिया, तो ये एक्सेप्टेबल है सब पार्टीज के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है कि ये 500 का नोट जो है, जो जेन्युइन नोट है, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी, हर पर्सन को ट्रांसफरेबल है। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया, जो मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया या चेक दिया, तो कहीं ना कहीं पे अगर सपोज करो एक चेक मैंने आपको दिया, नाम मैंने नहीं लिखा आपका उसके ऊपर, नाम अभी नहीं है, आपने सोचा कि ये चेक मैं ना लगा के जिसको मैंने पेमेंट करनी है उसको दे देता हूं, उसने सोचा मैं किसी और को दे देता हूं, तो ये चेक भी ट्रांसफरेबल है अनलेस एंड अनटिल आप उसको बेसिकली जब तक एंडोर्स कर सकते हैं। एंडोर्स करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, एग्जाम के लिए फिलहाल अभी जरूरी नहीं है आपके लिए। तो अभी फिलहाल ये समझ के चलिए कि वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं लाइक करेंसी। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अदरवाइज ये ट्रांसफरेबल नहीं होते। ठीक है,
अनदर पॉइंट, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। कई बार एग्जाम में इसको लेकर के पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में इनको लेकर के मतलब चैप्टर 17 स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, पूरा सब्जेक्ट मेंशन है। तो ये दो सेक्शन काम के हैं जो थोड़ा बहुत आ जाते हैं, मैं इसका और आपको आइडिया दे दूं तो क्या, ताकि आपको एक पूरा बेसिक पता चल सके। तो क्वेश्चन आता है होल्डर कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है। तो देखिए गाइस, इसको समझ के चलते हैं। हु इज एन होल्डर एंड हु इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए ने बी से कुछ सामान उधार लिया हुआ था और उसको पेमेंट करनी है। तो ए ने बी को 10,000 रुपीज का एक चेक इशू कर दिया। ठीक है, बी का नाम नहीं लिखा चेक के अंदर, क्योंकि जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा वो एंडोर्स हो सकता है। एंडोर्स मतलब दूसरे आदमी के पास जा सकता है, ट्रांसफरेबल है, नेगोशिएबल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने नाम लिख देगा तो फिर वो चेक ट्रांसफरेबल नहीं होगा, वो उसी आदमी के पास जाएगा। तो क्वेश्चन अब है कि आपने 10,000 रुपीज का चेक बी को इशू करा, क्योंकि बी ने आपको कुछ सामान दिया था। ठीक है, बी ने कोई सामान आपको दिया था। तो कहने का पर्पज ये है कि जब चेक बी के पास गया तो बी होल्डर बन गया चेक का। और क्योंकि चेक एक कंसीडरेशन के साथ गया है, यहां पर कंसीडरेशन भी है, क्योंकि बी ने कोई सामान आपको सप्लाई करा था 10,000 रुपीज का, उसके बदले में आपने चेक दिया था और ये बोनाफाइड मैनर में दिया गया। बी को नहीं पता ये चेक आपके पास कहां से आया, जेन्युइन है कि नहीं है, बी को नहीं पता। बी को सिर्फ इतना पता है कि भाई फॉर कंसीडरेशन मिला है और बोनाफाइड मैनर में मिला है। तो बी के हाथ में वो चेक है, कंसीडरेशन की वजह से है और बोनाफाइड मैनर में है। तो बी होल्डर है, और अगर उसके अंदर कंसीडरेशन प्लस बोनाफाइड भी आ जाए तो ये दोनों चीजें मिला करके ये बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। बात समझ आई? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि होल्डर प्लस कंसीडरेशन प्लस बोनाफाइड मैनर। लेकिन सपोज करो ए के पास जो चेक था वो ए का खुद का नहीं था, ए के पास वो चेक कहीं एक्स से आया था, और आया नहीं था, ए एक्स के यहाँ पर काम करता था, अकाउंटेंट है, और उसने एक्स के साइन करा हुआ चेक चुपचाप चोरी करके आपको दे दिया। तो जब वो ए के पास आया तब ए होल्डर है, ए होल्डर है। लेकिन ए के पास कंसीडरेशन नहीं है और वो बोनाफाइड मैनर में नहीं आया, उसने वो चेक चोरी किया है, तो ए सिर्फ होल्डर होगा। तो जहां पर कंसीडरेशन और बोनाफाइड हो, कंसीडरेशन और बोनाफाइड होल्डर के साथ, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। लेकिन जहां पर ये एलिमेंट्स अगर मिसिंग है, क्योंकि ए ने वो चेक चोरी किया है, एक्स से चोरी किया है, ए इस पैसे को अब जाकर के मान लो सपोज करो ए ने ये चेक अगर बी को नहीं दिया होता तो ए क्या करता, अपने पास अपने बैंक में जाता, चेक लगा देता। एक्स को जब पता चलता कि ऐसा कोई चेक बैंक में लगा है जो उसने इशू ही नहीं करा और ए ने फ्रॉड तरीके से लगा दिया, तो एक्स उसकी पेमेंट करने से मना कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ए प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये चेक मेरे पास क्यों आया। बात समझ रहे हैं? लेकिन जब ए ने वो चेक बी को दिया, क्योंकि बी होल्डर है, फिर कंसीडरेशन है और बोनाफाइड मैनर में है, तो बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब एक्स बी को पेमेंट करने से मना नहीं कर सकता, डिनाई करेगा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो टाइटल होता है ना बेटा, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल होगा, दिस टाइटल इज बेटर देन एनी अदर टाइटल। तो बी एक जेन्युइन पर्सन है, तो बी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, एक्स चाहे तो बाद में इस पैसे की रिकवरी चाहे तो ए से कर सकता है, क्योंकि ए ने फ्रॉड किया है, ए ने चोरी करा है चेक, तो वो एक्स अपना ए से रिकवरी करेगा, ये इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर वो चेक बी के पास आया और बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि जिस पर्सन का टाइटल सबसे बेटर होता है। तो यहां पर बी के पास पावर है कि वो ए को स्यू कर सकता है, चाहे तो एक्स को स्यू कर सकता है, क्योंकि चेक एक्स के नाम पर इशू हो रखा है। बात समझिएगा, एक्स बी को डिनाई नहीं कर पाएगा, भले ही एक्स ने जेन्युइनली चेक इशू ना कराओ, लेकिन क्योंकि उस चेक पर एक्स के साइन है, आए जहां से भी आया, क्वेश्चन है कि बी बिल्कुल पाक साफ है, बी की गलती नहीं है कोई भी, तो बी इज सेफ। इशू है ए के साथ और एक्स के साथ। अब एक्स और ए आपस में कैसे डील करेंगे ये आपको देखना है। अब भाई आपने अपने घर में एक चोर अकाउंटेंट बिठा रखा है, ये आपकी हेडेक है ना, ये बी की हेडेक नहीं है। तो ये आपके बीच का मैटर है, ये आप दोनों हैंडल करेंगे, बी इसके चक्कर में नहीं पिसेगा, तो बी आपके वजह से सफर नहीं करेगा। बात समझ आई? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। गाइस, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सारे के सारे मैं आपको बेसिक समझा के चल रहा हूं। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी अगर आपको इशू अराइज होता है, तो यू कैन गेट इन टच विद मी एट न्याय वेद लॉ अकेडमी। और
you can come and you can have one to one interaction with me and we can आपके जितने भी doubts हैं I can take all of your doubts, you can come and sit with me. Okay, so every Saturday Sunday we have mentorship session with the aspirants. There they can come and they are free mentorship session, तो वहाँ पर आराम से आ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं. We are at GTB नगर नियर दिस मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3. तो आप आइए, इट इज 14 फर्स्ट फ्लोर माल रोड, ओके, एट GTB नगर, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3. तो यू आर मोस्ट वेलकम. ठीक है, तो दिस इज अबाउट यू कैन से होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो ये बाकी सब चीजें लिखी हुई हैं बच्चों, इन सब का फिलहाल आपके लिए कोई यूज नहीं है क्योंकि ये सारे सिविल प्रोसीडिंग्स हैं. अब मैंने कहा आपसे कि सिविल प्रोसीडिंग के अंदर प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इररेलेवेंट हो चुके हैं. कहीं कहीं पर आज भी यूज होते होंगे और होते भी हैं, लेकिन उनका परसेंटेज इज नेग्लिजिबल, तो इनको इग्नोर करिए. चेक पर आते हैं. अब मैंने कहा ना, क्योंकि चेक में आपके पास दो रेमेडी हैं, सिविल और क्रिमिनल रेमेडी. तो आपके पास बेटर है कि यू शुड गो विद द क्रिमिनल कंप्लेंट केस, क्योंकि क्रिमिनल कंप्लेंट केस में सामने वाली पार्टी के ऊपर एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर है जिसमें अरेस्ट होने के चांसेस भी हैं. तो सिविल मैटर में ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से लोग जो है थोड़ा सा उसको अवॉइड कर जाते हैं. ठीक है, तो आपको जो मेन फोकस करना है बच्चों, राजस्थान के लिए या फिर MP के लिए या झारखंड या अदर स्टेट्स के लिए, तो यू हैव टू फोकस अपॉन दिस चैप्टर 17. तो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विद ऑल ऑफ यू द बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर 17, और मैं इसको इतना इजी बना दूंगा कि आप लाइफ में कभी भी इस पर्टिकुलर चैप्टर को नहीं भूलेंगे, बिलीव मी. तो बेटा देखिए, सबसे पहले सेक्शन 138 से शुरुआत होती है डिसऑनर ऑफ चेक को लेकर के, फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा. एटसेट्रा के बहुत सारे मीनिंग है. ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फंड्स नहीं है, तभी बहुत सारे मीनिंग आ चुके हैं इसके आज की डेट में. मैंने आपको बताया कि आप जब भी पढ़ें तो पहले बेसिक समझो सारा का सारा, फिर उसको लिंक करना शुरू करिए, तब एडवांस लेवल पे चलेंगे. पहले बेसिक समझते हैं. सेक्शन 138 के साथ 139 बहुत जरूरी सेक्शन है जिसके साथ हमेशा पढ़ा जाएगा, और इसका 142. ये तीन सेक्शन को इकट्ठा पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. ठीक है, उसके बाद आज की डेट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आने लगा है बेटा, वो आने लगा है 143A को लेकर के, इंटरिम कंपनसेशन को लेके. और उसके अलावा जो है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो 148 एज वेल एंड 147. तो दीज आर द मेन सेक्शंस विच आर मोर रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. अब मैं आपको सबसे पहले इसी स्क्रीन पर आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द बेसिक, और उसके बाद फिर एक एक करके सेक्शंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सुनिए. जब चेक बाउंस होगा, और चेक क्यों जरूरी है मैं समझा चुका हूं. जब चेक बाउंस होगा तो आपको करना क्या है. तो जब मैंने आपको एक चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, अब आप क्या करेंगे. 138 में एक प्रोसेस गिवन है कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है चेक बाउंस होने के बाद, और उसके बाद आपको कैसे और कहां केस फाइल करना है. दैट इज बीइंग गिवन इन सेक्शन 142. तो 138 और 142 पहले पढ़ेंगे इकट्ठा, क्योंकि इन दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा, 142 को और 138 को. इसके साथ में 139 पढ़ेंगे. तो पहले इन तीन सेक्शंस को पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इंटरिम कंपनसेशन एज वेल. ठीक है, तो नाउ गाइस लेट अस कम ऑन सेक्शन 138. डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट. तो ये जब डेफिनेशन, ये जब हेडिंग लिखी गई थी, इट वॉज ओनली अबाउट इनसफिशियंसी, लेकिन एटसेट्रा छोड़ दिया गया था क्योंकि चेक बाउंस होने का कारण सिर्फ और सिर्फ इनसफिशियंसी नहीं होता. तो पढ़ के देखते हैं गाइस इसको. वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम. तो मेरा अकाउंट है, जो मैंने अपने अकाउंट के थ्रू आपको एक चेक इशू किया विद द बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट for the discharge in whole or in part of any debt or other liability. Please guys mind it, other any debt or other liability. इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है. लोग नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों का सेम मीनिंग है. नहीं, इनका सेम मीनिंग नहीं है. तो सेक्शन 138 में आपके सामने जो गिवन है कि जब मैंने एक चेक इशू किया टू डिस्चार्ज माय डेट और एनी लाइबिलिटी, क्योंकि जब मैं डेट की बात करता हूं तो डेट एक बड़ा लिमिटेड सेंस में बात करता है, लेकिन लाइबिलिटी का बहुत वाइड मीनिंग है, बहुत वाइड मीनिंग है. तो डेट का मीनिंग क्या है. सपोज करिए मैंने आपसे कोई पैसा उधार लिया था और मैं आपको आपकी पेमेंट करनी है मैंने, या मैंने आपसे कोई सामान परचेज किया था उधार और आपको फिर पेमेंट करनी है, वो डेट है. तो आई एम योर डेटर.
आप मेरे क्रेडिटर हैं, मैं आपका डेटर हूं, ठीक है। लेकिन बात आती है लाइबिलिटी को लेकर के। तो लाइबिलिटी का बहुत वाइड मीनिंग है। तो लाइबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि मेरी और आपके बीच में डायरेक्ट लाइबिलिटी भी हो सकता है कि मैंने किसी और की लाइबिलिटी लेकर आपको चेक इशू करा था। तो लाइबिलिटी का इज नॉट ओनली अबाउट कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच की ट्रांजेक्शन से ही कंसर्न है। हो सकता है कि मैं आपसे पर्सनल लेवल पर कुछ आपको पे करने का प्रॉमिस करता हूं विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन आपको पता है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन भी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो लाइबिलिटी किसी भी वजह से आ सकती है, इट इज नॉट ओनली लाइक कि डेट। आजकल चेक के अंदर मैक्सिमम केसेस में सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी चेक दे रखे होते हैं ना बच्चों, सपोज करिए आप और मैं आपस में कोई बिजनेस करते हैं और हमने आपस में सिक्योरिटी के नाम पर कोई चेक दिया हुआ था, या मान लो आपसे मैंने कोई फ्लैट रेंट पे लिया हुआ और मैंने आपको सिक्योरिटी का चेक दे रखा है। तो ये सिक्योरिटी का चेक एक्चुअल में मेरा डेट नहीं है, लाइबिलिटी है कि अगर कल को मैं आपको पेमेंट नहीं करता या मैं आपका रेंट नहीं पे करता तो सिक्योरिटी चेक से आप पेमेंट कैश करवा लोगे। समझ रहे हैं? तो लाइबिलिटी का जो मीनिंग है इट इज वेरी वाइड, जो डेट का मीनिंग है इट इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। इज रिटर्न बाय बैंक अनपेड either because of amount of money standing to the credit of the account is insufficient, या तो मेरे बैंक में पैसा कम था, नहीं था कि जितना चेक का मैंने जितने का चेक दिया था आपको, या फिर और दैट इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट, या फिर मैंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा चेक इशू कर दिया, या और भी कोई रीजन। एटसेट्रा का मतलब है कोई और रीजन, साइन मिसमैच हो रहे हैं, ये भी एक रीजन है। मैंने स्टॉप चेक पेमेंट कर दी, ये भी अपने आप में एक रीजन है। ठीक है, या तो देयर माइट बी मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से चेक बाउंस हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है। तो अगर ये सब हुआ तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां से पढ़िए। such person shall be deemed to have committed an offense and shall without prejudice to any other person provisions of this act be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years, जो कि 2 साल तक की हो सकती है सजा, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, या फिर चेक के अमाउंट का डबल। तो यानी कि यहां पर जो ये कंसेप्ट है ना, और विद बोथ, तो 2 साल तक की सजा देने का प्रोविजन है और चेक अमाउंट का डबल तक का फाइन लगाने की पावर है कोर्ट के पास। इस वजह से अब लोग सिविल सूट में नहीं जाते, यहां आ जाते हैं कि उन्हें पता है कि इस डर की वजह से जिसने चेक इशू किया था, ड्रॉर ऑफ द चेक विल मेक द पेमेंट। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है बच्चों, आपके मोर देन 98% चेक बाउंस के केसेस एंड ऑफ द डे कॉम्प्रोमाइज के थ्रू सेटल होते हैं। कॉम्प्रोमाइज कंपाउंडेबल, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन अभी आता है कि सपोज करो मैंने एक आपको चेक इशू करा, चेक बाउंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आप जरा यहां ध्यान से देखिए बच्चों। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। एक्चुअल में ये 6 महीने अब नहीं है, नाउ इट इज 3 मंथ्स। ओरिजिनल एक्ट में ये 6 मंथ्स हैं, लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे बोस तो आरबीआई के एक अमेंडमेंट के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू ये 3 मंथ्स हो चुका है। यहां पर ध्यान देना बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एज पर एनआईए चेक प्रेजेंटेशन की कितना ड्यूरेशन है, तो 6 महीने लिखेंगे आप। एज पर एनआईए इट इज स्टिल 6 मंथ्स, लेकिन एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन इट इज 3 मंथ्स। एमपी में कई बार ऐसा हुआ है कि एमपी के जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया प्री में, बच्चों ने 3 महीने के ऊपर टिक करा, जबकि आंसर शीट में 6 महीने आया था। क्योंकि एनआईए में आज तक ये अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ये अमेंडमेंट एनआईए में नहीं है, आरबीआई की नोटिफिकेशन है जो बैंक फॉलो करते हैं, तो वहां पर एनआईए अप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये एज पर एनआईए 6 मंथ्स है, एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन 3 मंथ्स है, फ्रॉम द डेट ऑफ विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। तो सपोज करिए मैंने आपको एक चेक इशू करा 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, अब ये चेक मुझे 3 महीने आपको, यानी कि ये चेक मैंने आपको दिया तो आपको ये चेक 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में डिपॉजिट करना है पेमेंट के लिए, यानी कि टिल 31 मार्च 2023 तक। अगर आप 31 मार्च तक इस चेक को बैंक में नहीं लगाते तो ये चेक इसके बाद अपने आप एक्सपायर कर जाएगा और आप इस चैप्टर 17 में मूव नहीं कर पाएंगे, चैप्टर फिनिश हो चुका है। क्योंकि ये सबसे पहली कंडीशन है कि चेक को प्रेजेंट करना कंपलसरी है। अब आपने चेक प्रेजेंट नहीं करा, आपका चेक ऐसा का ऐसा रखा रखा एक्सपायर हो गया, आपने पेमेंट मांगी ही नहीं, आपने डिमांड ही नहीं करी। अब आपके पास रेमेडी है, सिविल सूट में जाइए, आप वहां से क्लेम करिए
किसी और तरह से आप यहां पर नहीं आ सकते, नंबर 1। तो 3 महीने के अंदर अंदर चेक को बैंक में लगाना कंपलसरी है बॉस, नंबर 1। सेकंड, द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेई मतलब जिसको पेमेंट होनी है या जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, एज द केस मे बी, मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग अ नोटिस in writing to the drawer of the check within 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid। तो सपोज करिए आपने एग्जैक्ट आपने जो है 31 मार्च को आपने बैंक में चेक लगा दिया बचने के लिए कि भाई वरना चेक एक्सपायर हो जाएगा। चेक आपने लगा दिया और आपको 2 अप्रैल को पता चला कि चेक डिसऑनर हो गया, चेक हैज बीन डिसऑनर। ठीक है बॉस। अब कानून ये कहता है, ये प्रोविजन आपसे कहता है विद इन 30 डेज, जैसे ही आपको पता चला, बैंक ने आपको बता दिया 2 अप्रैल को कि भैया जो चेक आपने लगाया था वो बाउंस हो गए, डिसऑनर हो गए। अब आपको विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये चेक, मतलब आपको बेसिकली करना क्या है, यू हैव टू बेसिकली सेंड अ नोटिस। आपको एक जो है, यू हैव टू मेक अ डिमांड। ठीक है, आप एक नोटिस सर्व करेंगे पार्टी को इन राइटिंग, एक पार्टी को नोटिस सर्व करेंगे कि भाई 30 मतलब उस 30 दिनों के अंदर अंदर, और नोटिस के अंदर आप क्या करेंगे, उसको 15 दिन का टाइम देंगे कि जब उसे नोटिस मिल जाएगा 15 दिनों के अंदर अंदर वो पेमेंट कर दे। तो क्या स्टेप होगा बच्चों, आपने चेक प्रेजेंट करा 31 मार्च को, 2 अप्रैल को बाउंस हो गया, 30 दिन के अंदर अंदर अब आपको नोटिस सर्व करना है, आपको नोटिस सर्व करना है अपोजिट पार्टी को। नोटिस सर्व करने का मेथड क्या होगा ये इसमें नहीं गिवन है, तो इसका मतलब है कि इट इज ओपन टू यू। आप कैसे भी नोटिस को सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो, आप चाहें तो ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, चाहे तो कुरियर कर सकते हैं, चाहे तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। एडवाइजेबल है कि आप ईमेल भी करें, जो ईमेल आईडी गिवन है, प्लस आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी सेंड करें, कुरियर भी करें, क्योंकि कोर्ट नॉर्मली फिर एक्सेप्ट नहीं करती इन चीजों को, तो कई बार दिक्कतें आती हैं प्रैक्टिकली। तो आपके लिए बेटर है, एडवाइजेबल है कि आप नोटिस को राइटिंग में करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है क्या व्हाट्सएप के थ्रू चलेगा, तो अगर बंदे का एड्रेस ट्रेसेबल नहीं है, बंदे का ईमेल आईडी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर है, हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि लॉ इसको लेकर के साइलेंट है। तो नोटिस सर्व करना है, राइटिंग में करना है, तो राइटिंग कैन बी एनी वे। ओके, तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर, वंस यू गेट द इंफॉर्मेशन कि भैया चेक बाउंस हो चुका है, आपको 30 दिनों के अंदर अंदर नोटिस सर्व करना है। तो यानी कि मान के चलिए 2 अप्रैल के आपको पता चला, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जिस दिन पता चलेगा उससे 30 दिन के अंदर अंदर, तो 3 मई तक आपको नोटिस सर्व करना है। तो आपको 3 मई तक आपको नोटिस, आपने उसको भेज दिया, तो नोटिस मिलने के बाद, सपोज करो उसको 3 मई को नोटिस मिल गया, आपने नोटिस भेजा और उसको 3 मई को नोटिस रिसीव हो गया, आप उसको 15 दिन का टाइम देंगे। आप उस नोटिस में लिखेंगे कि भाई देख, तूने ये चेक दिया था इस चीज के लिए, चेक बाउंस हो चुका है, 15 दिन में पेमेंट कर दे। तो उसे 18 मई तक पेमेंट करनी है। नोटिस मिलने के मतलब 18, आप इसे कह लीजिए 19, एक्चुअली नोटिस मिलने के बाद एक दिन और उसे मिलता है, तो उसे 15 दिन के अंदर, नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 19 मई तक वो आपको पेमेंट करेगा। अगर वो 19 मई तक भी पेमेंट नहीं करता तो क्या होगा, अब ये 138 में गिवन नहीं है, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू कम टू सेक्शन 142। तो इसके बारे में गिवन है यहां पर, ये 142 का सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस अंडर क्लॉज सी ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 138। तो यानी कि जब 19 मई तक उसने पेमेंट नहीं करी, अब यहां से विद इन 1 month, 19 मई यानी कि अगले दिन से काउंट होगा, तो यानी कि 20 मई से लेकर के एक महीना आपका काउंट होगा, तो आप इसे कह सकते हैं 20 जून 2023 तक अगर आपके पास पेमेंट नहीं आती, सॉरी, आपको जो है पेमेंट तो आपको 19 मई तक नहीं आई, तो पेमेंट नहीं आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है। यू हैव टू फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट। तो आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेंगे बॉस, कहां फाइल करेंगे, यहां गिवन है साफ साफ, यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा बच्चों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है ये वाला कि कंप्लेंट कहां फाइल होगी, तो इट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो वंस अगेन आई रिपीट दिस एंटायर प्रोसेस,
3 महीने के अंदर अंदर चेक को प्रेजेंट करना है। एनआईए में 6 महीने गिवन है, लेकिन आरबीआई के थ्रू 3 महीने। चेक प्रेजेंट करने के बाद जिस दिन आपको पता चलेगा कि चेक बाउंस हो चुका है, उसके बाद 15 दिन के 30 दिनों के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक नोटिस सर्व करना है। 15 दिन का उसको टाइम पीरियड देना है। नोटिस मिलने के बाद 15 डेज, अगर वो 15 डेज तक वो पेमेंट नहीं करता, तब उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो इस तरह से आपका चेक फाइल मतलब चेक बाउंस का क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगा बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। ठीक है गाइज। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि केस किस पर्टिकुलर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जाएगा। दशरथ रूप सिंह राठौर का जजमेंट आने के बाद, क्योंकि पहले क्या था कि सिविल सूट के बेसिस पर जुरिस्डिक्शन डिसाइड होती थी, जो कि अलग अलग पैरामीटर्स थे। चेक कहाँ इशू किया गया, चेक कहाँ प्रेजेंट किया गया, डिपेंडेंट कहाँ रहता है, कहाँ बिजनेस कैरी ऑन करता है। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी कि भाई चेक बाउंस के केसेस किस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, कहां, किस एरिया में फाइल करें। इस मैटर को दशरथ रूप सिंह राठौर का जजमेंट आने के बाद रिजोल्व किया गया, और आज की जो सिचुएशन है वो गिवन है आपका सब सेक्शन 2 के अंदर। मैं आपको समझाता हूं बेटा ये कैसे होता है। इधर देखिए, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, सिंपल इधर देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए। चेक इशू करा मैंने, तो सपोज करो ए जिसने चेक इशू करा, और यू कैन से ड्रॉर ऑफ द चेक, जो कि ड्रॉर ऑफ द चेक है। बी जो कि पे है, जिसको पैसा मिलना है, या होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है। ए का बैंक अकाउंट है एचडीएफसी के अंदर, और सपोज करो ये है आपका जीटीपी नगर में। ठीक है। उधर जो बी है, जो पे है, उसका अकाउंट है आईसीआईसी बैंक के अंदर, और इसका अकाउंट है सपोज करिए करोल बाग में, या सपोज करिए नोएडा में है। थोड़ा सा दूर ले लेते हैं ताकि आप इजिली समझ सकें। नोएडा में। तो ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा चेक के टाइप्स क्या होते हैं बच्चों। तो मैं आपको समझाता हूं। पहली बात, चेक के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, आपका जो चेक होगा वो 2 कैटेगरीज में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बच्चों अकाउंट पे चेक, और एक होता है बेरर चेक। ठीक है। अकाउंट पे एंड बेरर चेक। अकाउंट पे चेक का मतलब क्या होता है बच्चों, जो चेक होता है ना, हम उसके ऊपर 2 लाइनें खींच के किसको पे करना है हम उसका नाम डाल देते हैं। सपोज करो मैंने बी को पे करना है, तो यहाँ बी का नाम डाल दिया और मैं अपने साइन कर दूंगा। एक होता है बेरर चेक, जहां पर नाम नहीं लिखा जाता, जो कि काउंटर पर जाकर के कैश होता है। काउंटर पर जाकर के, तो कोई भी बंदा जब चेक में किसी का नाम नहीं लिखा, वो काउंटर पर जाएगा और यहां लिखेगा सेल्फ, और जाकर के चेक के पीछे अपने साइन करके उस चेक को काउंटर से जाकर के कैश करवा लेगा, काउंटर से जाकर के। ठीक है। तो इसकी पेमेंट ओवर द काउंटर होती है, इसे ओटीसी कहा जाता है, ओवर द काउंटर। तो बेरर चेक पे किसी का नाम नहीं होता, वो ब्लैंक चेक होते हैं। अमाउंट लिखा होगा, ब्लैंक चेक होता, नाम किसी का नहीं होता। तो आप में से कोई भी जिसके पास वो चेक होगा, जाइए काउंटर पे नाम लिखिए सेल्फ, नाम नहीं आएगा सेल्फ आएगा, जाकर काउंटर पर प्रेजेंट करिए, पैसा ले लीजिए। अकाउंट पे ही चेक में आपका नाम लिखा जाएगा स्पेसिफिकली, तो आपको ये चेक अपने बैंक अकाउंट में लगाना पड़ेगा। तो ये 2 तरह के तरीके होते हैं चेक को इशू करने के। तो कानून ये कहता है बेटा कि अगर आपने अकाउंट पे ही चेक इशू किया था तो क्या होगा, और अगर बेरर चेक इशू किया था तो क्या होगा। देखिए, इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, अकाउंट के थ्रू, यानी कि अकाउंट पे ही चेक है आपका, द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पे और द होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में बी मेंटेन्स हिज अकाउंट इज सिचुएटेड। तो अगर आपने अकाउंट पे ही चेक इशू किया था, तो जहां पर पेई का अकाउंट है, पेई का, वहां आप जाएंगे, मतलब चेक फिर उस एरिया की जुरिस्डिक्शन में फाइल होगा। तो यानी कि अगर अकाउंट पे ही चेक है, अकाउंट पे ही चेक अगर है, तो अगर मान लो जैसे मैंने आपको चेक दिया, अकाउंट पे ही चेक है, आपने उसको अपना कहीं भी प्रेजेंट करो, आप पूरे इंडिया में कहीं भी लगाइए उसे, अपने बैंक की मतलब आईसीआईसी बैंक के अंदर कहीं भी प्रेजेंट कर दो। लेकिन जहां पर आपका मेन ब्रांच है, क्योंकि हर अकाउंट की एक ब्रांच होती है, मेन ब्रांच, तो आपकी ब्रांच आपने जहां अकाउंट ओपन करवाया था वो नोएडा में है, तो यानी कि जुरिस्डिक्शन क्या बनेगी, गौतम बुद्ध नगर। तो आपको चेक बाउंस का केस गौतम बुद्ध नगर में फाइल करना पड़ेगा।
लेकिन अगर चेक बेरर चेक है, अगला देखिए, इफ द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट, अदरवाइज थ्रू यानी कि अकाउंट में नहीं आप कर रहे हैं, आप ओवर द काउंटर करवा रहे हैं, बेरर चेक है, नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पर जिसने चेक इश्यू किया था उसका अकाउंट है, मतलब उस बैंक में जाना पड़ेगा। तो उस केस में केस कहां फाइल होगा? जहां पर जिसने चेक इश्यू किया था उसकी जहां पर मेन ब्रांच है। अगर मैं कहूं जीटीबी नगर है तो मेन ब्रांच उसके जहां है उस पर्टिकुलर कोर्ट में ये मैटर जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपको दिल्ली में जाकर के आपको ये केस फाइल करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो जहां पर जीटीबी नगर की जुरिस्डिक्शन होगी आप वहां जाकर के इस केस को फाइल करेंगे। तो इसलिए मैंने आपका ये लिखा कि जहां पर अकाउंट पे चेक आपने इश्यू करा तो पेई का मेन अकाउंट मेन ब्रांच कहां है वो देखा जाएगा। अगर बेरर चेक है तो ड्रॉर का मेन बैंक अकाउंट कहां मेंटेन होता है वहां देखा जाएगा। तो दिस इज द वे यू हैव टू फाइल द क्रिमिनल कंप्लेंट केस बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 142। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है, आपको सिर्फ यही समझना था। चेक बाउंस होगा तो सबसे पहली बात, चेक बाउंस की इंटीमेशन मिलते ही 30 डेज में केस फाइल करना, 30 डेज के अंदर आपको जो है एक नोटिस सर्व करना है, 15 डेज का टाइम देना है और उसके बाद फिर 1 महीने के अंदर अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है। दैट्स ऑल। समझे? उसके बाद इसमें एक मेन सेक्शन है, सेक्शन 139 प्रिजम्पशन। इसको लेकर के मैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में लैंडमार्क केस आपसे डिस्कस करूंगा, एक बहुत लैंडमार्क केस, आज नहीं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बॉस एक सबसे जरूरी टॉपिक आता है आपका, बहुत क्रूशियल टॉपिक आता है, दैट इज सेक्शन 113 प्रिजम्पशन। आखिर प्रिजम्पशन है क्या? चेक बाउंस के मैटर्स में अगर आप कभी देखेंगे बॉस तो क्रिमिनल कंप्लेंट जो फाइल की जाती है आपके बेयर एक्ट में पीछे गिवन है क्रिमिनल कंप्लेंट का फॉर्मेट। राजस्थान और एमपी में क्रिमिनल कंप्लेंट मेंस में क्वेश्चन आता है, क्रिमिनल कंप्लेंट ड्राफ्ट करने के लिए भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये जरा उसे पढ़ लीजिएगा। तो नॉर्मली सपोज करिए मैंने आपको एक चेक इशू करा था, मैंने आपसे कोई सर्विस, मैंने कंप्यूटर परचेज किया था बॉस आपसे, और मैंने आपको एक चेक इशू किया था, वो चेक बाउंस हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेंगे ना उसमें लिखेंगे कि मैंने मिस्टर ए से मतलब ये पैसा लेना था क्योंकि मैंने इन्हें कंप्यूटर सेल किया था, इस दिन मैंने चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया, मैंने 30 दिन के अंदर अंदर जो है नोटिस सर्व करा, 15 दिन का टाइम दिया और 1 महीने में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी, और ये पूरा प्रोसेस मैंने फॉलो करा। तो यहां पर आपने अपनी कंप्लेंट में ये लिख करके देना है कि ये चेक आपके पास क्यों आया था। तो आपने तो कहा ना कि मैंने कंप्यूटर सेल करा था, ये उसका इनवॉइस है, आप उसे अटैच कर देंगे, काम खत्म हो गया। क्योंकि यहां पर कोर्ट इसी बेसिस पर ये प्रिज्यूम कर लेगी आप सही कह रहे हो, क्योंकि आपका जो एविडेंस है वो एफिडेविट पर ले लिया जाएगा। ठीक है? आपका जो एविडेंस है वो एफिडेविट पर ले, आप एक एफिडेविट लगा देंगे कि जो जो मैंने कहा ये सब सही है। तो इस बेसिस पे आपकी बात को प्रिज्यूम करके कि आपने जो कहा सब सही है, कोर्ट अब मेरे से क्वेश्चन पूछेगी, बताइए भाई आपने चेक इशू करा था कि नहीं करा था। फिर हम सीआरपीसी में चले जाएंगे जब हम समन्स केस की प्रोसीडिंग्स को लेकर बात करेंगे। तो कोर्ट आपसे पूछेगी कि भाई, मेरे से पूछेगी बताओ भाई ये चेक आपने जो है मतलब आपने दिया था कि नहीं दिया था। तो मैं कहता हूं जी हाँ दिया था। तो मतलब आप मानते हैं कि ये चेक बाउंस हुआ है? मैं कहता हूं मानता हूं। लेकिन आप मानते हैं कि आप गिल्टी है? मैं कहता हूं नहीं। वो एक प्रोसेस है सीआरपीसी का, समन्स केस की प्रोसीडिंग्स को लेकर, ट्रायल को लेकर के। तो कहने का पर्पज है कि जब आपने क्रिमिनल कंप्लेंट में लिख दिया कि ऐसे ऐसे आपके पास चेक आया था, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी आपने जो कहा वो सही है, अनलेस एंड अनटिल मैं आपको झूठा प्रूव कर दूं, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। तो जब तक मैं ये प्रूव नहीं कर दूंगा कि जो आपने कहा वो झूठ है, तब तक आपके फेवर में ये रहेगा कि आपको जो चेक मिला वो जेन्युइन मिला था। क्यों मिला था? टू डिस्चार्ज एनी डेट और एनी लाइबिलिटी, जो अभी मैंने आपको 138 में समझाया कि डेट और लाइबिलिटी को लेकर के। क्योंकि बॉस ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये रीजन बताना पड़ेगा कि आपके पास चेक क्यों आया था, ये आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो आप जब रीजन बता देंगे अपना, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी आपने जो कहा वो सही है। इसी को लेकर के मैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में एक लैंडमार्क केस डिस्कस करूंगा, अभी नहीं। आज पहले बेसिक समझो, क्योंकि एनआईए एक बार समझ गए ना बॉस, मजा आ जाएगा। Defense which may not be allowed in any prosecution under section 138. It shall not be a defense in prosecution for an offense under section 138 that the drawer had no reason to believe when he issued the check that the check may be dishonored or presentment for the reasons stated in that section.
मतलब आप कल को कोई बड़ा एक्सक्यूज लें कि नहीं मेरे को तो पता ही नहीं था चेक बाउंस हो जाएगा सर, मैं तो गुनहगार हुई नहीं, ये और वो, तो आप है ना बड़े वेग किस्म के एक्सक्यूज नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं पे ये चैप्टर 17 को लाने का पर्पस क्या था वो सब ये समझिए। चैप्टर 17 से पहले सारी प्रोसीडिंग सिविल प्रोसीडिंग थी। चेक बाउंस हो जाते थे, लोग परेशान रहते थे, 10-10 साल केस चलते हैं, 15-15 साल। तो जो बंदा बेचारा बिजनेस कर रहा है और जिसको पैसा नहीं मिला वो तो परेशान है, फंड्स की कमी की वजह से उसकी तो दुकान बंद हो सकती है। तो एक ट्रस्ट, क्योंकि सारा बिजनेस का एटमोस्फेयर ट्रस्ट पे चलता है, ट्रस्ट इज द मेन फैक्टर। अगर वो ट्रस्ट खत्म हो गया तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो ट्रस्ट मेंटेन रखने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए जहां पर लोग डरें, ट्रस्ट ब्रीच करने से पहले डरें। तो ये चैप्टर 17 वही है। तो यहां पर आपके कोई भी सिली एक्सक्यूज कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपने अगर चेक इशू करा, आप कह देंगे नहीं सर वो तो गलती से चेक गलत साइन हो गया था, ऐसे ही मैंने इशू कर दिया था, मैं तो मजाक मजाक में इशू कर रहा था। ये सब चीजें एंटरटेनेबल नहीं है। ठीक है। अगला सेक्शन 141, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। मैक्सिमम केसेस में ऑफेंसेस बाय कंपनीज आता है, मतलब कंपनीज के जो चेक बाउंस के केस होते हैं वो आते हैं आपके सामने। कंपनी से केस में पूरे सेक्शन में मेन पॉइंट ये है कि जो भी पर्सन चेक इशू करने के पीछे था, जिसने भी चेक इशू किया था और उसको पता था कि चेक बाउंस हो जाएगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो अकाउंट्स का बंदा हो, क्वेश्चन ये है कि जो गिल्टी है। इसीलिए बेटा आपने जो आज तक पढ़ा वाइकेरियस लाइबिलिटी, उसे खत्म कर दो। टुडे द टाइम इज ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कि जो पर्सन उस पर्टिकुलर एक्ट के पीछे है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहां लिखा हुआ है इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस, तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ, तो उस पर्टिकुलर चेक के बाउंस होने के पीछे जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे पकड़ा जाएगा। तो वो नॉर्मली डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर ही होते हैं। कंपनी के केस में अल्टीमेटली कंपनी चला तो वही रहे हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन ने इंटेंशनली जानबूझ के कोई गलत चेक इशू करा जो कि डायरेक्टर की नॉलेज में नहीं था और फिर वो बाउंस हो गया, तब उसकी वजह से डायरेक्टर गिल्टी नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन 141। तो प्लीज फोकस अपॉन कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ओके, नाउ कम टू सेक्शन 142A, ये आप छोड़ दीजिए। 143, पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई द केस समरली। अगर कोर्ट चाहे तो ये जो मैटर्स आपके हैं, क्योंकि ये समन्स केस की तरह चलेगा, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उस केस का ट्रायल समरी ट्रायल की तरह से चला सकती है। लेकिन उसमें कंडीशन है कि 1 साल और 5,000 रुपये से ऊपर का फाइन फिर नहीं लगाया जाएगा। दैट इज द कंडीशन। ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर चाहें तो आप समरी ट्रायल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है किसी भी मोमेंट पे कि नहीं ये केस सिर्फ समरी ट्रायल का नहीं है, समन्स केस का नहीं है, तो यहां पर कोर्ट के पास पावर होती है कि वो चाहे तो उस पर्टिकुलर केस को वारंट केस की तरह से भी कोशिश कर सकती है चलाने के लिए। सेक्शन 259 सीआरपीसी इसमें पढ़ा जाएगा। जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो मैटर है समरी ट्रायल या समन्स केस की तरह से पॉसिबल नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो इस केस को फिर वारंट केस की तरह से भी लेकर के चल सकती है। कोर्ट की पावर है ये। ठीक है। आखिर ये समन्स केस और वारंट केस क्या है गाइस, तो सीआरपीसी की क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहां पर सिर्फ इतना सा है कि अगर कोर्ट चाहे तो उस केस का समरी ट्रायल कर सकती है। बस समरी ट्रायल में 1 साल और 5,000 रुपए से ऊपर की फिर फाइन लगाने की पावर नहीं होगी। एग्जाम में बस इतना सा क्वेश्चन कई बार आता है कि सेक्शन 143 में समरी ट्रायल के टाइम पर कोर्ट कितनी इंप्रिजनमेंट या पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकती है। ठीक है। और कुछ इसमें नहीं करना। तो देखिए हमेशा उतना पढ़िए गाइस जितने की एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। रिसर्च करने मत बैठिएगा, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि फिर ये जो ट्रायल होगा 6 महीने में खत्म किया जाएगा। ठीक है। समरी ट्रायल की तरह अगर आप इसको चलाते हैं तो। नाउ सेक्शन 143A, 143A और 148 इंटरिम कंपनसेशन को लेकर हम बात करेंगे और इकट्ठा करेंगे इन दोनों को लेकर के बात। ठीक है। 148 और 143A को लेकर के हम बात करेंगे अभी। इंटरिम कंपनसेशन, हालांकि ये अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों तो ये आपका अमेंडमेंट 2018 के बाद हुआ है
और इसको लेकर के 2 लैंडमार्क केस भी आए हैं, लेकिन मैंने कहा लैंडमार्क केस आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि पहले बेसिक समझो, स्टेप बाय स्टेप चलिए, अच्छा रहेंगे, मिक्स करेंगे, परेशान होंगे, तो केसेस नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे सामने क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरिम कंपनसेशन और व्हाई इंटरिम कंपनसेशन इज नेसेसरी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज इंटरिम कंपनसेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, और कितना कितना दिया जाएगा ये भी देख लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता था पहले कि चेक बाउंस का केस फाइल हो गया, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी, मैटर पेंडिंग है, एक्यूज फरार है, मिल ही नहीं रहा है, समन्स इशू हुए, वारंट इशू हुए, फिर भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में बड़ी डिफिकल्टी आती थी कि भाई क्या करें। तो इस सारी डिफिकल्टी से बचने के लिए कई बार क्या होता है ना, एक्यूज बीच में भाग जाता है, मिलता नहीं है, ट्रेसेबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में कोर्ट, मतलब यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस ने जब ये अमेंडमेंट लाए, तो इस अमेंडमेंट का पर्पस क्या था कि जब तक केस चलेगा 5 साल, 6 साल, 10 साल या 2 साल या 1 साल, तब तक जो है ना, जिसको पेमेंट मिलनी थी उस बंदे को तो बेचारे को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही है ना बॉस, उसको तो पैसा है ही नहीं उसके पास, तो वो बेचारा क्या करे। तो इस केस को रिजॉल्व करने के लिए सेक्शन 143A में जब ट्रायल चलता है केस का, जब केस ट्रायल की स्टेज पर होता है, तब उस केस में प्रोविजन है कि जो चेक अमाउंट है उसका अप टू 20% तक कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे तो कंप्लेनेंट को टेम्परेरी रिलीफ, इट इज अ काइंड ऑफ टेम्परेरी रिलीफ के नाम पर दे सकती है। तो दिस वी कॉल टेम्परेरी रिलीफ। तो चेक अमाउंट का अप टू 20%। और सेक्शन 148 में ये जो है वो तो है ही है। तो जब कंप्लेनेंट अपील में चला जाता है, जब कंप्लेनेंट अपील में चला जाएगा फिर से मैटर पेंडिंग हो जाएगा, बिकॉज जब तक अपील डिस्पोज नहीं होगी तब तक आप फिर वेट करो। तो 148 कहता है कि जो बेसिकली कोर्ट ने कंपनसेशन अवार्ड किया आपको 138 के अंदर, कंपनसेशन का टोटल अमाउंट जो आपको दिया गया है उसका मिनिमम 20% और उससे ऊपर भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, जब केस पेंडिंग है ट्रायल के टाइम पर, तो चेक अमाउंट का अप टू 20% तक कोर्ट के पास पावर है इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए। जब मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा 138 का, तो कोर्ट जितना आपको पेनल्टी लगाएगी एक्यूज्ड के ऊपर पेनल्टी के नाम पर, तो जितना भी कंपनसेशन आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर चेक बाउंस के केसेस में सारा पैसा कंप्लेनेंट को मिलता है, तो जितना भी आपको कंपनसेशन मिलना है उस कंपनसेशन का मिनिमम 20% तो आपको मिलेगा मिलेगा। और कोर्ट की डिस्क्रिप्शन एपिलेट कोर्ट की, वो चाहे तो उससे ऊपर भी दिलवा सकती है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम कंपनसेशन। इंटरिम कंपनसेशन को लेकर के कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है बच्चों 60 डेज का लेकर के, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इट इज 60 डेज के अंदर अंदर, और 30 डेज और ऊपर एक्सटेंड करा जा सकता है। तो एट द मैक्स 90 डेज के अंदर अंदर ये कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो आपका एग्जाम में प्री में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 143A में कंपनसेशन का अमाउंट क्या है या 148 में क्या है। तो ध्यान रखिएगा 143A में अप टू 20% ऑफ चेक अमाउंट, जबकि अपील में 148 में कंपनसेशन का मिनिमम 20%। टाइम पीरियड दोनों में सेम है, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर करेगी 60 डेज प्लस 30 डेज, यानी कि एट द मैक्स 90 डेज का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, ये डिपॉजिट किया मतलब ये पे किया जाएगा। ठीक है, अगर जजमेंट कंप्लेनेंट के अगेंस्ट आता है तो कंप्लेनेंट को ये सारा पैसा विद इंटरेस्ट वापस भी करना पड़ेगा विद इन सेम टाइम लिमिट। तो अगर सपोज करें कंप्लेनेंट केस हार जाता है, तो कंप्लेनेंट को ये चेक अमाउंट का जो भी पैसा ये इंटरिम कंपनसेशन वगैरह का दिया गया था, ये सारा पैसा वापस देना पड़ेगा एक्यूज्ड को विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को लेकर के कंडीशन अगर आप पढ़ेंगे बच्चों, वो साफ साफ इसमें गिवन है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जैसा भी आरबीआई उस समय पर डिसाइड करती है, तो वो रेट्स होते हैं बेसिकली, उसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट यू कैन से 143A एंड 148 इंटरिम कंपनसेशन। I am explaining you the basics of everything, and in case of any queries, any doubts, you please come and talk to me in person. You are most welcome at my center. Okay. Even I will be sharing few exercises with all of you in this online platform, and you can submit the answers to me on my email ID that I will share with you after the few lectures. And you can come on Saturday, Sunday for the interactive sessions as well, one-to-one sessions. Okay. Now 144 आप पढ़िए आगे।
इट इज अबाउट मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। तो जब समन्स वगैरह सर्व किए जाएंगे, जब अपोजिट जब जब एक्यूज वगैरह को बुलाया जाएगा या विटनेसेस को बुलाया जाएगा, तो जो नॉर्मली हमने पढ़ा है अपना सीआरपीसी के अंदर समन्स वगैरह प्रोसेस करने का, या जो भी बेसिकली है, सर्व एट अ प्लेस वेयर सच एक्यूज्ड और विटनेस ऑर्डिनरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन बाय स्पीड पोस्ट और बाय सच कुरियर सर्विस, जो भी आपका है, तो उसके हिसाब से आपको समन सर्व करने हैं। इसको लेकर के एग्जाम में खासकर क्वेश्चंस नहीं आते। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि समन सर्व कैसे किए जाएंगे। क्वेश्चन है एविडेंस ऑन एफिडेविट। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट का एविडेंसेस वगैरह हैं वो एफिडेविट पर दिए जाएंगे। अब एक मेन बात समझिए गाइस, यहाँ मेन बात क्या है। कहने को ये क्रिमिनल कंप्लेंट है, कहने को ये क्रिमिनल केस है, लेकिन इसकी तासीर, इसका मेन आउटकम सिविल केस की तरह से है। कैसे, समझिए ध्यान से। 147 पर आ जाइए। ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल। कहा ना जजमेंट्स बाद में बात करेंगे बॉस, अभी पहले सुनिए ध्यान से। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल। तो सीआरपीसी के प्रोविजन कंपाउंडिंग को लेकर के सेक्शन 320 यहाँ अप्लाई नहीं करेगा। यहाँ पर अलग से प्रोविजन है। यहाँ पर जो ऑफेंस है 138 के चेक बाउंस का, वो कंपाउंडेबल है। और इसको लेकर एक जजमेंट जो आपसे मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वो ये कहता है ट्रायल शुरू होने से पहले भी कंपाउंडिंग हो सकती है, ट्रायल होने के बाद भी कंपाउंडिंग हो सकती है, जजमेंट आने के बाद भी कंपाउंडिंग हो सकती है। तो कंपाउंडिंग किसी भी स्टेज पर अलाउड है, किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज। तो यहां पर कंपाउंडिंग आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब कभी भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इट इज नॉट लाइक कि आप ट्रायल से पहले ही करो या ट्रायल के बाद करो, जजमेंट से पहले करो, नहीं। जजमेंट आने के बाद भी कंपाउंडिंग की जा सकती है, कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, सिंपल। और बैंक स्लिप प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। मैंने कहा था ना कि जो बैंक अपनी तरफ से स्लिप इशू करेगा चेक बाउंस को लेके, वो प्राइमा फेसाई एविडेंस माना जाता है कि हाँ ये रेलिवेंट है और एडमिसिबल है। तो बाय गोइंग थ्रू ऑल दीज सेक्शंस ऑफ एनआईए, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ एनआईए चैप्टर 17 एंड ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ एनआईए। इस लेक्चर का जो मेन पर्पज है वो ये है, जुडिशरी एस्पिरेंट्स को एनआईए सबसे डिफिकल्ट लगता है, सबसे डिफिकल्ट, और अफसोस है कि इसे ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता। और बच्चे बड़ी दिक्कतें फेस करते हैं कि सर यही समझ में नहीं आया, क्या करें, ड्रॉर का मीनिंग नहीं पता, ड्रॉई का मीनिंग नहीं पता, पेई का मतलब नहीं पता, होल्डर का नहीं पता, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं पता, प्रोसेस नहीं पता, इसका टाइम पीरियड नहीं पता, चेक कहाँ, मतलब बाउंस के चेक बाउंस के केस कहाँ फाइल होंगे, ये नहीं पता। आई हैव कम अक्रॉस ऑल दीज कंप्लेंट्स, ऑल दीज इश्यूज ऑफ जुडिशरी एस्पिरेंट्स, और उसको ध्यान में रखते हुए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो। प्लीज वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली, और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आई एम शेयरिंग माई व्हाट्सएप नंबर विद ऑल ऑफ यू। You can talk to me on this number. You can WhatsApp me on this number your queries. I will get back to you. तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है एनआईए को लेकर के, या किसी भी एक्ट को लेकर, या जुडिशरी की तैयारी को लेके, प्लीज कम in touch with me on this number. Drop me a message on my WhatsApp number. I will reply you ASAP. And you are most welcome for all of your doubts and the mentorship session on Saturday Sundays. So you may get in touch with me on my this number. Okay, guys. So rest I will discuss with you later on. For the time being, thank you guys, thank you all of you, thank you for watching this video. And if you like this video, please share and subscribe my channel, and like it, press the button of bell icon, because I will be uploading all lectures of all minor acts of judiciary examination. Plus after that I will be covering major acts as well. For the time being, thank you guys, thank you very much.